ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਲਵਰ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਲਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਗਣ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਵਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਸਟੈਟਿਕ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਸਟੈਟਿਕ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤਜ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਗੜ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਰਗੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੈਨ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੈਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਗੜ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਧਨ ਚਾਰਜ ਭਾਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਕ ਰਿਣ ਚਾਰਜ ਭਾਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਣ ਚਾਰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਐਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ 'ਚ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਤਾ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ 10 ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਊਟਰਲ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 10 ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ 10 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 9 ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਨਿਊਟਰੋਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਜੇ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਨਿਊਟਰੋਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਹ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ 1 ਪਲੱਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 9 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1
प्लस का बच गया अपने कोल, इस करके ये ते चार्ज आ गया। तो ਜਿਹੜੇ पासे गया अपना, ਜਿਹੜੇ पासे अपना हो गया इलैक्ट्रॉन, उत्थे की होएगा, उत्थे देखो की होएगा कि ਜਿਹੜਾ उत्थे मान लो इदां सी, उत्थे भी 10 प्रोटॉन सी ते 10 ही न्यूट्रॉन सी, इलैक्ट्रॉन सी तां न्यूट्रल सी, ते एक आ गया उन्होंने कोल इलैक्ट्रॉन एक्सट्रा हो गया, ठीक है। यानी कि 10 की जगह ते 11 इलैक्ट्रॉन हो गए उन्होंने कोल। ते जो 10 प्रोटॉन सी यानी कि पॉजिटिव का 10 सी, ते इलैक्ट्रॉन भी अपने कोल 10 ही सी, पर हुण 11 हो गए, यानी कि माइनस का एक अपने कोल वध गया। तो जिहड़ा प्राप्त करेगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ माइनस का चार्ज आ गया, तो जिन्हें दिता है यानी कि जिन्हें गवाया ਉਹਦੇ ਕੋਲ प्लस का चार्ज आ गया। यही गल इच कही गई है। देखो जे कोई वस्तु इलैक्ट्रॉन गवांदी है तो उस उपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो जो वस्तु इलैक्ट्रॉन प्राप्त करती है उस उपर नैगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगे देखो, समान चार्जित वस्तुआं एक दूजे नूं आकर्षित करदियां ने। इहदा नियम हुंदा है कि जिहड़ियां समान चार्ज दीयां वस्तुआं हुंदियां ने एक दूजे नूं दूर धक्का देणगियां, ते जिहड़ियां असमान यानी कि बराबर नहीं होणगियां वो एक दूजे नूं आकर्षित करनगियां। तुसीं देख सकदे हो तस्वीर 'च कि जिहड़ी प्लस माइनस है वो तो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूजे नूं, अपने वल खिच रहे हैं। जिहड़े दोने पॉजिटिव ने वो एक दूजे नूं दूर तक रहे हैं, तो जिहड़े दोनों नैगेटिव ने वो भी एक दूजे नूं दूर अपने आप तो कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगे देखो, कूलम्स ला, तो कूलम्स ला हैगा जिहड़ा कूलम ने ला दिता सी, कह जांदा उहनूं कूलम्स ला या भाव के कूलम का नियम। उन्हें की किया सी, कूलम ने चार्जित वस्तुओं विचकार बल निर्धारित करने वाला नियम दस्या है, जिसनों कूलम ना कहते हैं। ये तो आप गल कर रहे हैं कि उसने दस्या बल निर्धारित करने वाला नियम जिसनों कूलम जला कहा जाता है। तो है कि नियम, वो देखो, दो वस्तुओं विचकार आकर्षण या आकर्षण बल चार्ज की मात्रा के गुण के सिद्धा अनुपाती और दूरी के उल्ट अनुपाती होंगे। ये तो ही बनता, बस जी लाइनां लिखियां होंदियां ने, ये तो ही अपना बनता है फॉर्मूला। दो वस्तुओं के विचकार आकर्षण या आकर्षण बल जिहड़ा लग रहा है वो चार्ज की मात्रा के गुण के सिद्धा अनुपाती होएगा, यानी कि चार्ज की मात्रा की गुणा होएगी, तो दूरी के उल्ट अनुपाती होएगा, भाव दूरी नाल उदों डिवाइड होएगा, दूरी के वर्ग के उल्ट अनुपाती होएगा, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला की सी, ये फॉर्मूला है अपने कोल फोर्स बराबर ये जिहड़ा कोई कूलम्स कॉन्सटेंट है Q1 यानी कि पहली वस्तु का चार्ज, Q2 भाव दूसरी वस्तु का चार्ज, आर स्केयर भाव के उन्हों की दूरी का स्केयर। ये है वह कूलम्स फॉर्मूला है, जिहड़ा कूलम्स ला है जिहड़ा उहदा फॉर्मूला है। अगे देखो, करंट, करंट की हुंदा है, करंट आप सुनते हैं करंट लग गया, करंट हुंदा की है, किसी चालक विच इलैक्ट्रॉन्स की दर नूं वगण की दर नूं, ठीक है, करंट कहते हैं। भाव किसी चालक विच कोई चालक अपने कोल उस विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन वग रहे हैं वो कितनी स्पीड नाल वग रहे हैं, ठीक है। एक सैकेंड विच किन्ने इलैक्ट्रॉन पार हो रहे हैं उन्होंने आपां कहने आ करंट, ठीक है। तो करंट की हुंदा है, किसी चालक विच इलैक्ट्रॉनां दे वगण की दर नूं करंट कहते हैं। तो करंट की यूनिट की है, करंट की यूनिट है एंपीयर, करंट की यूनिट की हुंदी है एंपीयर। इहदे नाल ही चार्ज की यूनिट की है, जिहड़ा चार्ज हुंदा है उहदी यूनिट है कूलम, ठीक है, कूलम कहते जिन्हों। चार्ज की यूनिट होगी कूलम, तो करंट की यूनिट होगी अपने कोल एंपीयर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगे देखो, किसी चालक विचों एक सैकेंड विच एक कूलम करंट लगाउण नूं 1 एंपीयर कहा जाता है। देखो मान लो कोई चालक है तो 1 सैकेंड का समा लगे, तो उहदे विचों आपां 1 ही कूलम करंट लगाइए तो उन्होंने की कहा जाएगा 1 एंपीयर के बराबर उन्होंने मन्निया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगे देखो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की हुंदा है, ये ना अक्सर बच्चे उलझ जाते हैं, स्टूडेंट्स होंगे जिहड़े वो अक्सर ये उलझ जाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की हुंदा है तो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की हुंदा है। तो आपां ये बिल्कुल क्लीयर कर दिंदे आ। देखो तुसीं ध्यान नाल, सब तो पहला जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा है उन्होंने सिंपल जिहा समझ लो कि दो बिंदुओं के पोटेंशियल विच अंतर ही पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा है। पर इसकी वरतों आपां इह च किवें करदे हां, वो देखो तुसीं, किसी इकाई चार्ज नूं, किसी एक इकाई चार्ज नूं इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, सब तो इंपोर्टेंट लाइन है, इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक बिंदु तो दूजे बिंदु तक ले जाने लई किया गया कार्य, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए कि इलैक्ट्रिक फील्ड की हुंदी है। अपने कोल मान लो कोई चार्जित वस्तु है, ये अपने कोल कोई चार्जित वस्तु हो रही, ठीक है,
तो ਇਹਦਾ ना असर मतलब कि ਇਹਦਾ प्रभाव कुछ दूरी तक रहेगा ना। यही ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ इलैक्ट्रिक फील्ड। चुंबक नहीं ਹੁੰਦੀ, चुंबक का प्रभाव ਆਪਾਂ कुछ दूरी तक महसूस कर सकते हैं ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कि इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही ये फील्ड के अंदर ही किसी एक बिंदु तो मान लो ये बिंदु अपने को P है, ये बिंदु अपने को R है, किसी एक बिंदु तो मान लो P तो आपने R तक एक इकाई चार्ज लैके जाना है। ठीक है, एक इकाई चार्ज आपने P तो R तक लैके जाना है। तो उस इकाई चार्ज नूं P तो R तक लैके जाने विच जिहड़ा कार्ज होया उसनूं ही कहंदे ने पोटेंशियल डिफरेंस। देखो स्टूडेंट्स दोबारा समझो कि इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक इकाई चार्ज नूं एक बिंदु तो दूसरे बिंदु तक लैके जाने लई कीता गया कार्य पोटेंशियल डिफरेंस कहलाउंदा है। ये समझ गए तुसीं। इंपोर्टेंट की है कि इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होया ये काम। अगे देखो जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा है उसनूं कहा जांदा है वर्क बाय चार्ज। चलो ये बाद च देखो तुसीं, पहलां ये देखो। हुण देखो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हुण इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की हुंदा है? ये हुंदा है इलैक्ट्रिक फील्ड के बाहर तो जां अनंत तो किसी बिंदु नूं उस बिंदु तक लैके आउण लई कीता गया कार्य जिसदा आपां ने इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना है। देखो दोबारा इलैक्ट्रिक फील्ड के बाहर तो, ठीक है, इन्हें पहली गल कहती इलैक्ट्रिक फील्ड के बाहर तो जां अनंत तो किसी बिंदु नूं उस बिंदु तक लैके आउण लई कीता गया कार्य जिसदा आपां ने इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना है। देखो डायग्राम की मदद नाल समझोगे तुसीं आसानी नाल। जिवें अपने कोल ये आ गया इलैक्ट्रिक फील्ड क्यू दा, ते इहदे अंदर ना एक पॉइंट है P, ठीक है, तो किते बाहर पॉइंट है इलैक्ट्रिक फील्ड के बाहर किते पॉइंट है जां अनंत ते आपां मान सकते हैं R। तो पॉइंट R तो यानी कि बाहर तो एक इकाई चार्ज नूं P तक लैके आने लई कीता गया कार्य की होगा P का इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होएगा। किहदा होएगा? P का इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होएगा कि R तो P तक एक इकाई चार्ज नूं लैके आउण लई कीता गया कार्य। जे आपां ने मान लो उरे कोई पॉइंट आ गया अपने कोल G, ठीक है, पॉइंट G, तो अपने G का इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना है। तो वो किवें पता करांगे कि एक इकाई चार्ज नूं R तो G तक लैके आउण लई कीता गया कार्य G का पोटेंशियल G का इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। समझ गए तुसीं? जिहड़ा अपना पोटेंशियल डिफरेंस सी वो तां सी इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक बिंदु तो दूजे बिंदु तक एक इकाई चार्ज नूं लैके जाने लई कीता गया कार्य। तो जिहड़ा इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो की है किसी बाहरी बिंदु तो अनंत तो एक इकाई चार्ज नूं उस बिंदु तक लैके आउण लई कीता गया कार्य जिसदा आपां ने इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना। समझ गए स्टूडेंट्स? इहदे नाल ही तुसीं देखो जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा है वो हुंदा है वर्क बाय चार्ज, यानी कि कार्य बटे चार्ज। पंजाबी च कह सकते हैं आपां कार्य बटे चार्ज। जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है उन्होंने V नाल दर्शाया जाता है, तो वर्क नूं आपां W नाल ते चार्ज नूं आपां Q नाल दर्शा सकते हैं, यानी कि V बराबर है W/Q। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस की जी SI यूनिट होंगी है वो होंगी है वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर होंदा है 1 जूल बटे 1 कोलम। ठीक है, 1 जूल बटे 1 कोलम, यही गल बन गई। जिमें पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की है वोल्ट, वर्क की यूनिट की है जूल, चार्ज की यूनिट की है कोलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है 1 जूल बटे 1 कोलम। समझ गए स्टूडेंट्स तुसीं? तो अपनी ये सी अपनी अज की क्लास। सोलवर अकैडमी नूं फॉलो करो, तो अपने जिहड़े दोस्त मित्र हैगे ने तुहाडे उन्हां नूं भी इन्फॉर्म करो कि अपनी सोलवर अकैडमी ते बिल्कुल फ्री MCQ ते थ्योरी क्लास लगाई जा रही है, तो उन्हां नूं भी सबसक्राइब करने लई कहो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास च। ओके, थैंक यू।